Hello kids, how are you all? Hope all of you are doing well. So today I'm again here with a new chapter and the name is Trees for Us. As you all know, trees are very important. Not only important, it is our lifeline. Can we survive without trees? Trees gives us what? Oxygen. Oxygen मिलती है ना हमें trees से, और अगर trees ही नहीं होंगे तो क्या होगा? No oxygen, no life. हाँ? So trees are very important, and nowadays what is happening? We are cutting down the trees without thinking. What will happen to our future generation? How the future generation will sustain? You should think. We have to be mindful what we are doing. We are playing with our health. We are playing with the life of our kids. So that is why it is very important to plant tree whenever and wherever possible. बहुत ज़रूरी है. इसीलिए बोला जाता है वृक्षारोपण आज हमारी ज़रूरत है, अभी नहीं तो कभी नहीं. Okay kids, so before starting with the chapter, what we will do as usual, हम करेंगे warm up. Read the following statements and tick those that show kindness to others. ठीक है, जहाँ थोड़ा kind हम दिखाते हैं कि yes, हम किसी के लिए चिंता करते हैं, किसी के लिए फिक्र करते हैं. Can I help you cross the road? Yes. This shows kindness, that you are thinking about others. Concern, आप अपना concern दिखा रहे हैं. Let the old lady cross the road herself. The traffic will stop for her anyway, so I don't care. उसको अपने खुद ही. She's old, but she should do it herself. No, this is not the right approach. She can fall down. Anything can happen. Don't be afraid. Just throw stones at the dog. It will run away. So, is it a good thing? You are teaching what? कि animal को पत्थर मारो, है ना? Dog को पत्थर मारो. Very bad. Never hit animals. They also have the same senses the way we are. They are also the creator of God only. The cat is frightened. Stand still. It will go away. It is actually afraid of you. क्या बोले? जैसे हम जानवरों को देखकर डरते हैं, ऐसे जानवर भी हमें देखकर डरते हैं. तो cat is frightened. Cat डरी हुई है, तो एकदम बिल्कुल बिना हिले डुले खड़े हो जाओ. वो खुद चली जाएगी. It is actually afraid of you. वो तुम्हें देखकर डर गई है. So this is a very nice way to explain anyone. It's all right, mistakes happen, things break sometime. अब जैसे कोई भी चीज़ टूट जाती है, कई बार आपके ब्रदर से, सिस्टर से, हाँ किसी से भी टूट जाती है, आपसे टूट जाती है, तो क्या बोला है? It's all right. आपको डर लगता है ना कि your mother or father or anyone else will scold you, but उसको भी समझाने का एक तरीका है. This is a very good way. Things break sometime, mistakes happen, mistake है, but do not make it a habit. Just remember this. Okay, so this is a very nice way to explain. हो जाता है, हमसे भी हो जाता है. Oh my God, you broke the vase. How clumsy you are. अब आप क्या कर रहे हो? Blame कर रहे हो कि देखो तुमने तो waste हो दिया. Now you don't know how clumsy you are. So this is not the right way. No. So see kids, there are always n number of ways to explain a thing. उसी चीज़ को हम बहुत अच्छे से भी समझा सकते हैं, और उसी चीज़ के लिए हम नाराज़ या गुस्सा भी हो सकते हैं, या किसी के ऊपर हम कई बार चिल्ला भी सकते हैं. तो ये हमारे ऊपर है. We reap what we sow. Find out how some trees were rewarded for their kindness and their unselfish nature. So, do you know the meaning of this? We reap what we sow. हम जैसा बोते हैं, हम वैसा ही पाते हैं. Sowing means बोना, और कैसा पाएंगे? जैसी सब फसल उगाओगे वैसे ही तो पाओगे. तो जिस तरह से हम values या जिस तरह का बिहेवियर हम दूसरों के साथ करते हैं, वैसा ही बिहेवियर इन टर्न हमें दूसरों से मिलता है. ओके, सो नाउ द कैरेक्टर्स. दिस इज अ प्ले
okay, story come play. So over here there are different characters. इसके characters एक narrator है जो पूरा narrate करेगा. Spruce tree, little bird, pine tree, birch tree, juniper tree, oak tree, north wind, willow tree and frost king. So many trees and a narrator and bird and many other characters are there. Okay, so now narrator. First of all, the narrator is standing and he is narrating in front of all the audience, and this is the stage. Bird scene 1. This is the first scene. Birds in winter fly away from cold northern climes to the warm south. कहाँ चले जाते हैं birds? What do you mean by climes? Moving from one country to another. Okay, when there is a change in climate, mostly in winters, जब बहुत ज़्यादा सर्दी ठंड हो जाती है तब हम देखते हैं कई बार बहुत सारे वाइट कलर के ज़्यादातर बर्ड्स होते हैं, वो मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह. ठीक है, सो बर्ड्स इन विंटर फ्लाई अवे फ्रॉम कोल्ड नॉर्दर्न क्लाइम्स टू द वार्म साउथ. कहाँ से? नॉर्दर्न क्लाइम से, नॉर्दर्न रीजन से वो कहाँ मूव कर जाते हैं? साउथ में, जहां पर कि थोड़ा गर्म है. फॉर सस्टेनेंस, है ना, बिकॉज अगर वो मूव नहीं करेंगे वो वहां पर दे विल डाई. A long time ago, once when it had started to get cold in Russia, the birds realized that winter was coming. तो एक बार बहुत पुरानी बात है कि रशिया में जब थोड़ा वेदर चेंज हुआ, ठंडा होना स्टार्ट हुआ, तो वहाँ के जो बर्ड्स थे उन्होंने एकदम से ये महसूस किया कि अरे लगता है विंटर्स आने वाली हैं. दे गॉट रेडी टू फ्लाई अवे टू समवेयर इन इंडिया. देखिए, रशिया से इंडिया, दिस इज हाउ दे माइग्रेट एंड दीज आर कॉल्ड माइग्रेटरी बर्ड्स. दे ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंसेस, अनइमेजिनेबल. हाँ, तो उन्होंने क्या डिसाइड किया कि हम इंडिया की तरफ जाएंगे. एंड सी, दे हैव अ वेरी गुड सेंस. वो खाली विंड्स की डायरेक्शन और उससे ही उनको अंदाज़ा लग जाता है कहाँ पर किस तरह का क्लाइमेट होगा. और एक बार जहाँ चले जाते हैं, दे रिमेंबर द होल वे. हाँ, अमेजिंग मेमोरी. इट इज़ लाइक वी कांट इवन थिंक ऑफ. एंड वेट फॉर द स्प्रिंग देयर. और वहाँ पर किसका वेट करेंगे? स्प्रिंग सीजन का. But one little bird had a broken wing. But उसमें से एक जो छोटी सी little bird थी, उसका wing टूटा हुआ था, broken wing, पंख टूटा हुआ था, and could not fly. वो नहीं उड़ पाई. He looked all around helplessly to see if there was any place where he could keep warm. वो बेचारी इधर से उधर से इधर वहीं कहीं आसपास घूमती रही और देखती रही कि शायद कोई ऐसी जगह मिल जाए जहाँ पर उसको थोड़ी वार्मनेस मिले. एंड ही सॉ द ट्रीज ऑफ द ग्रेट फॉरेस्ट. और उसको फिर क्या दिखाई दिया? एक बहुत बड़ा जंगल जहाँ पर बहुत सारी ट्रीज थी. सी, दिस इज द लिटिल बर्ड. अब लिटिल बर्ड है. Perhaps these trees will keep me warm through the winter, so he can live there. तो बर्ड ने, उस छोटे से बर्ड ने क्या सोचा कि मे बी ये वाली जो ट्रीज हैं मुझे थोड़ा वार्म रखेंगी इस विंटर में, तो मैं यहाँ पर अपना पूरा विंटर रह पाऊंगा. नाउ द नरेटर, सो द लिटिल बर्ड वेंट टू द एज ऑफ द फॉरेस्ट. बिल्कुल वो जो था एज, मतलब जहाँ से वो फॉरेस्ट स्टार्ट होता था वहाँ पर चला गया. हॉपिंग एंड फ्लटरिंग विद हिज ब्रोकन विंग. तो वो क्या कर रहा था? हॉप, एक जगह से दूसरी जगह. एंड फ्लटरिंग, मूविंग क्विकली, मीन्स विद इन, मतलब ऐसा कोई नहीं कि सिंक्रोनाइज्ड वे में, जैसे भी ट्राइंग टू मूव एक जगह से. फ्लटरिंग मीन्स मूविंग क्विकली इन एन अनऑर्गेनाइज्ड वे विद द ब्रोकन विंग. क्या करें, उसका तो जो पंख थे टूटे हुए थे. द फर्स्ट ट्री ही वेंट वॉज अ स्लिम सिल्वर बर्च. जो पहला ट्री था उसका नाम क्या था? स्लिम सिल्वर बर्च. तो लिटिल बर्ड ने क्या बोला? ब्यूटिफुल बर्च ट्री, विल यू लेट मी लिव इन योर वार्म ब्रांचेस अंटिल स्प्रिंग कम्स. तो क्या बोला लिटिल बर्ड ने? ओह, यू आर सो ब्यूटिफुल बर्च ट्री, विल यू लेट मी लिव इन योर वार्म ब्रांचेस. क्या तुम मुझे अपनी इस गर्म सी ब्रांचेस में, वार्म ब्रांचेस में रहने दोगी जब तक कि स्प्रिंग नहीं आ जाता. तो बर्च ट्री, ना बर्च ट्री, व्हाट शी सेड,
डियर मी, व्हाट अ थिंग टू आस्क। डियर मी, मुझसे कह रहे हो, क्या बोल रहे हो? आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई ओन लीव्स, मुझे तो खुद ही अपने जितने भी मेरे पेड़ के पत्ते हैं उनका बहुत ध्यान रखना है। थ्रू द विंटर एंड दिस इज इनफ फॉर मी, पूरी सर्दियाँ मुझे उनका ध्यान रखना है और ये काम मेरे लिए बहुत है। आई कैन नॉट हेल्प यू, गो अवे, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती हूँ, तुम यहाँ से चली जाओ। सो सैड। नाउ नरेटर। The little bird hopped and fluttered with his broken wing until he came to another tree. It was a great big oak tree. अब क्या हुआ? मना कर दिया था भाई। किसने मना कर दिया था? स्लिम सिल्वर बर्च ट्री ने। तो अब जो लिटिल बर्ड थी वो फिर से हॉपिंग करते हुए, फ्लटरिंग करते हुए धीरे धीरे अपने ब्रोकन विंग के साथ एक दूसरे ट्री पर आ गई, और वो दूसरा ट्री था काफ़ी बड़ा, ग्रेट बिग ओक ट्री। लिटिल बर्ड, अब लिटिल बर्ड ने क्या, ओ बिग ओक ट्री, कैन आई लिव इन योर वार्म ब्रांचेस अंटिल स्प्रिंग कम्स? सेम थिंग। अब ओक ट्री से बोला कि यू आर सच अ बिग ओक ट्री, क्या मैं आपकी ब्रांचेस में रह सकती हूँ जब तक कि स्प्रिंग नहीं आ जाता? बिकॉज इट इज़ विंटर, तो मुझे थोड़ी वार्मथ मिलेगी। अब ओक ट्री ने क्या बोला? डियर मी, व्हाट अ थिंग टू आस्क, क्या मुझसे पूछ रहे हो? ओहो, ये क्या बोल रहे हो? If you live in my branches all winter, you will eat my acorns. अगर तुम मेरे ब्रांचेस में रहे तो तुम तो मेरे सारे के सारे acorns खा जाओगे, मीन्स जो फ्रूट्स नट्स वगैरह लगे होते हैं ओक ट्री में। नो, गो अवे, बिल्कुल नहीं, यहाँ से चले जाओ। The narrator. So the little bird hopped and fluttered with his broken wing till he came to the willow tree by the edge of the brook. अब क्या हुआ? फिर से वही बेचारा, क्या करता वो छोटा सा बर्ड, वो हॉपिंग करते हुए इधर उधर अपने पंखों को फैलाते हुए जितना वो कर पा रहा था, वो बिल्कुल कहाँ पर आ गया? विलो ट्री के पास। उसको क्या दिखाई दिया? एक विलो ट्री बाय द एज ऑफ द ब्रूक। वो कहाँ खड़े हुए थे? बिल्कुल कॉर्नर में एक ब्रूक के। व्हाट इज अ ब्रूक? इट इज अ मीन्स एक छोटा सा झरना टाइप और अ स्ट्रीम ऑफ वाटर, फ्रेश वाटर, दैट इज कॉल्ड अ ब्रूक। वहाँ पर एक बहुत फ्रेश वाटर का एक झरना था, वहीं पर क्या था? विलो ट्री था। तो लिटिल बर्ड ने क्या कहा? ओ ब्यूटिफुल विलो ट्री, विल यू लेट मी लिव इन योर वार्मथ अंटिल स्प्रिंग? सेम चीज कि विलो ट्री, क्या तुम मुझे रहने दोगे अपने ब्रांचेस में जब तक कि स्प्रिंग नहीं आ जाता, मुझे थोड़ी वार्मथ मिलेगी। विलो ट्री, नो, आई नेवर स्पीक टू स्ट्रेंजर्स, गो अवे, आई कांट हेल्प। विलो ट्री ने क्या बोला? मैं अजनबियों से बात नहीं करता हूँ, यहाँ से चले जाओ। नाउ द सीन चेंजेस। सो सैड ना? Narrator. The poor little bird did not know where to go, but he hopped and fluttered along with his broken wing. अब वो छोटा सा जो बर्ड था उसको पता ही नहीं था कि वो कहाँ जाए, वो इधर से उधर हॉपिंग कर रहा था और फ्लटरिंग कर रहा था। Then the spruce tree saw him. अब किसने देखा उसको? एक spruce tree ने। तो उसको देखकर स्पर्स ट्री ने खुद बोला, Where are you going, little bird? तुम कहाँ जा रहे हो छोटे से बर्ड? Little bird, I don't know. The trees will not let me live with them to keep me warm, and my wing is broken, so I cannot fly away to another warm place. तो क्या बोला उस बर्ड ने? मुझे नहीं पता मैं कहाँ जा रहा हूँ, बट मुझे इतना पता है कि ये जो ट्रीज हैं वो मुझे अपने ब्रांचेस में नहीं रखेंगी, क्योंकि वो नहीं रखना चाहती हैं, और माई विंग इज़ ब्रोकन, मेरा तो जो विंग है वो ब्रोकन है, तो मैं एक जगह से दूसरी जगह जहाँ पर कि वेदर वार्म है वहाँ पर भी नहीं जा सकता हूँ, तो मुझे कुछ नहीं पता कि मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। तो ये सुनकर स्पर्स ट्री ने क्या बोला? यू मे लिव इन वन ऑफ माई ब्रांचेस। सो नाइस। हाँ, स्पर्स ट्री से कि तुम मेरे किसी भी एक ब्रांच में रह सकते हो। हियर दिस वन इज़ द वार्मेस्ट ऑफ ऑल। फिर अपने सारे ब्रांचेस में से उसने बताया कि देखो इस वाले ब्रांच में रहो, ये सबसे ज़्यादा वार्म है। यू कैन लिव हियर, वेलकम लिटिल बर्ड, तुम इस ब्रांच में आकर रह सकते हो। वेलकम, उसको वेलकम करता है। लिटिल बर्ड, कैन आई स्टे ऑल विंटर? तो उसने सरप्राइज होकर बोला कि सब तो मना कर रहे थे। ने फिर पूछा कि क्या मैं पूरे विंटर रह सकता हूँ?
स्पर्स ट्री, यस आई शेल लाइक योर कंपनी। तो स्पर्स ट्री ने कहा बिल्कुल रह सकते हो, इनफैक्ट मुझे तो तुम्हारे साथ रहना पसंद आएगा। वी कैन गेट टू नो ईच अदर, हम एक दूसरे के बारे में जानेंगे। नरेटर, द पाइन ट्री स्टूड अलोंगसाइड द स्पर्स ट्री, उसी के स्पर्स ट्री के साथ कौन सा ट्री खड़ा हुआ था? पाइन ट्री। And when he saw the little bird hopping and fluttering with his broken wing, he too wanted to help the poor little bird. तो जब पाइन ट्री ने भी देखा कि एक छोटा सा बर्ड है और वो बहुत ज़्यादा परेशान है, उसका एक विंग टूटा हुआ है, वो इधर से उधर फ्लटरिंग जा रहा है, थोड़ा थोड़ा हॉप कर रहा है, तो उसने भी सोचा कि मैं भी इस बर्ड की हेल्प करूँगा। पाइन ट्री, माई ब्रांचेज आर नॉट वेरी वार्म, मेरी जो ब्रांचेज हैं वो बहुत ज़्यादा वार्म नहीं है, बट आई कैन कीप द विंड अवे फ्रॉम यू बिकॉज आई एम बिग एंड स्ट्रॉन्ग। तो पाइन ट्री ने क्या बोला कि ऑल्दो मेरी जो ब्रांचेस हैं वो बहुत ज़्यादा वार्म नहीं है, बट जो हवा आती है ना, ये विंटर्स की हवा, मैं आई कैन प्रोटेक्ट यू फ्रॉम दैट बिकॉज मैं काफ़ी बड़ा हूँ और स्ट्रॉन्ग हूँ। नरेटर, देन द जुनिपर ट्री सॉ व्हाट वाज गोइंग ऑन, उसके बाद जुनिपर ट्री ने क्या देखा कि ये क्या चल रहा है, एंड सेड दैट शी वुड लाइक टू गिव द लिटिल बर्ड हिज डिनर। तो जुनिपर ट्री ने कहा कि इस छोटे से बर्ड को मैं डिनर दे दूंगा। ऑल विंटर, पूरे विंटर, फ्रॉम हर ब्रांचेस। सो नाइस। सो द लिटिल बर्ड फ्लटर्ड अप ऑनटू द वार्म ब्रांचेस ऑफ द स्पर्स। तो वो छोटा सा बर्ड कहाँ चला गया? वार्म ब्रांचेस, स्पर्स ट्री की वार्म ब्रांचेस पर चला गया। द पाइन ट्री केप्ट द विंड अवे फ्रॉम हिज हाउस। तो पाइन ट्री ने क्या किया? विंड को आने ही नहीं दिया जहां पर कि वो छोटा सा बर्ड था। द जुनिपर ट्री गेव द लिटिल बर्ड हर बेरीज। जुनिपर ट्रीज पर क्या लगी हुई थी? बेरीज। तो वो बेरीज जुनिपर ट्री ने छोटे से बर्ड को दी टू ईट थ्रू आउट द विंटर। पूरे विंटर्स उसने अपनी बेरीज दी। Now the little bird was very comfortable in his warm nest. तो अब वो जो छोटा सा बर्ड था वो बहुत कंफर्टेबल था अपने वार्म से नेस्ट में। He was sheltered from the wind and had juniper berries to eat. उसको शेल्टर भी मिल गया था, हवा भी नहीं आ रही थी और उसको बेरीज भी मिल गई थी खाने के लिए। The selfish trees at the edge of the forest looked upon each other. जो सेल्फिश ट्रीज थी स्टार्टिंग में, हाँ, ओक ट्री एंड अदर ट्रीज, जिन्होंने कोई हेल्प ही नहीं की थी, वो एक दूसरे को देखते रहे। बर्च ट्री, नो आई वुड नॉट टेक केयर ऑफ द स्ट्रेंज बर्ड। ओक ट्री, यस आई वुड नॉट रिस्क माई एक्रेंस। तो वो यही बोलते रहे। एंड हियर इज अ पिक्चर, सी दिस इज अ पिक्चर ऑफ ऑल द ट्रीज। फिर विलो ट्री, आई वुड नॉट स्पीक टू स्ट्रेंजर्स। इन्होंने तो यही बोला था ना, नरेटर। एंड द थ्री ट्रीज स्टूड अप वेरी टॉल एंड प्राउड। वो जो तीनों ट्रीज थे बहुत प्राउडली खड़े रहे। दैट नाइट द नॉर्थ विंड केम टू द वुड्स टू प्ले। उस दिन क्या हुआ? नॉर्थ विंड आई, मीन्स बहुत ठंडी हवा। ही पफ्ड एट द लीव्स विद हिज आइसी ब्रेथ and every leaf he touched fell to the ground. तो इतनी तेज हवा आई और इतना ठंडा था कि जहाँ जहाँ से वो हवा आई वो टच करते हुए लीव्स को गई और लीव्स नीचे गिर गई हैं। He wanted to touch every leaf in the forest, for he loved to see the trees bare. North Wind asked his father, the Frost King, for permission. तो जो the North, see what they are saying, he wanted to touch every leaf in the forest. हर लीफ को नॉर्दर्न विंड टच करना चाहती थी और सारी लीव्स को शेड करना चाहती थी। फॉर ही लव टू सी द ट्रीज बेयर, बिकॉज क्या चाहती थी वो हवा, जो नॉर्दर्न वाली हवा थी, वो चाहती थी कि पूरे के पूरे जो ट्रीज हैं उसमें एक भी लीफ ना रहे। नॉर्थ विंड आस्क्ड हिज फादर, द फ्रॉस्ट किंग। फ्रॉस्टिंग मीन्स पूरा बर्फ जैसा हो जाता है। तो उसने अपने फादर से पूछा और परमिशन के लिए कि क्या मैं सारे के सारे लीव्स को गिरा दूं? नॉर्थ विंड, मे आई टच एवरी लीफ, विल दे शेड देयर लीव्स? तो नॉर्थ विंड ने बोला कि क्या मैं हर लीफ को टच करूं, सारे के सारे लीव्स शेड हो जाएंगे? फ्रॉस्ट किंग, नो,
The tree which were kind to the bird with the broken wing may keep their leaves. तो फ्रॉस्ट किंग ने क्या बोला नॉर्दर्न विंड को कि नहीं, वो सारे पेड़ जो काइंड थे, जिन्होंने अपनी काइंडनेस दिखाई थी इस छोटे से बर्ड को विद द ब्रोकन विंग, में कीप देयर लीव्स, उनकी लीव्स को नहीं गिराना है. Narrator, so north wind left the spruce pine and the juniper trees alone. तो नॉर्थ विंड ने किस किस को नहीं छुआ, इन तीनों ट्रीज को, बिकॉज उन्होंने उस छोटे से बर्ड की हेल्प की थी. एंड दैट इज वाई एवरग्रीन ट्रीज कीप देयर लीव्स इवन इन विंटर. सो दैट इज द रीजन these trees are called evergreen trees, because once upon a time they have helped a little bird in saving their lives and crossing that winter season. So they always remain green with leaves. It does pay to be kind, doesn't it? So kids, always remember, whatever you will sow shall you reap. जैसा आप करोगे वैसा ही आपको रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि इन तीनों ट्रीज ने उस छोटे से बर्ड की हेल्प की थी, तो उनकी लीव्स कभी भी किसी भी सीजन में शेड नहीं होती हैं. एंड दैट इज व्हाई these are called evergreen trees, and the forest where they exist is called the evergreen forest. Isn't it a very beautiful story and a wonderful lesson to learn? So be courteous, be kind, always try to do good deeds. Good work always pay off. Now coming to the word meaning. Climb, a country with a particular kind of climate. Fluttering, to move in quick irregular motions. Hopped means jumped. Brook, a small natural stream of fresh water. Alongside means beside. Acorns, fruits or nuts of an oak. Now coming to the comprehension part. Birds in dash fly away from cold northern climes to the warm south. Winter, कब चले जाते हैं? Winters में. और कब तक रहते हैं? Spring तक. A blank space, bird had a broken wing and could not fly. A little bird. The little bird went to all of these. All of these. The juniper tree offered food for all winters to little bird. So this is food. Fill in the blank. Birds fly away from cold. If you live all winter in my branches, you will eat my acorns. A-C-O-R-N-S. Just a moment. Acorns. Okay. This is second. Poor little bird did not know where to go. Did not know where to go, isn't it? So this is the third one. The blank tree stood alongside the spruce tree. The pine tree. C part. Say if the given statements are true or false. I can keep the wind off because I am big and strong. This is true. Willow tree let live the little bird in its branches. Willow tree ने क्या कहा था? Yes or no? Let's check it. So which were the three trees? Which were the three trees, kids? Can you name? Spruce, pine and juniper. Only these were the three trees. है ना? So willow tree ने तो क्या बोल दिया था? No, 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 you can't live.
This is not possible, isn't it? So, willow tree, let live the little birds in its branch. This is false. The night north wind came to play in the woods. True. The trees which were kind to the little birds shed their leaves. This is false. They became the evergreen tree and the forest is called the evergreen forest. So that's all in this chapter, kids. Hope you have understood the comprehension part also. So have a nice day. Take care of yourself. Goodbye.